أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع فيما يدخل في المبيع ساتویں فصل کہ جب کچھ بیچا جائے تو اس بیچنے میں کیا کیا چیز داخل رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے گھر بیچا تو اس میں کیا کیا شامل رہے گا، زمین بیچی تو اس میں کیا کیا شامل رہے گا، صحیح ہے، جانوروں کو بیچا تو اس میں کیا کیا شامل رہے گا، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے کہ الفصل السابع ساتویں فصل فیما يدخل فی المبیع جو کچھ مبیع میں داخل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں من باع ارضا، من باع ارضا یعنی جس نے بیچا زمین، صحیح ہے، اگر کسی نے زمین بیچی خلا فیہا النخل والشجر مع الشرط، تو شرط کے ساتھ جو کھجوریں ہوں یا پیڑ پودے ہوں اس زمین پر وہ سب اس میں داخل ہیں۔ جو پیڑ اور پودے کھجور اور پیڑ ہیں وہ سب اس بکری میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، من باع ارضا جس نے زمین بیچی، دخل فیہا النخل والشجر اس میں داخل ہے کھجور اور پیڑ، کھجور کا درخت اور پیڑ، مع الشرط شرط کے ساتھ، وَإِلَّا فَلَا یعنی اگر اس میں شرط نہ لگائی جائے پیڑ اور کھجور کی تو پیڑ اور کھجور اس بکری میں داخل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ پیڑ اور کھجوروں کو الگ سے بیچ سکتا ہے، اگر کہہ دے کہ بھائی یہ پیڑ اور کھجور نہیں صرف میں زمین کا سودا کر رہا ہوں تو پھر وہ پیڑ اور کھجور اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَيَدْخُلُ لَوْ قَالَ اور پیڑ اور کھجور کے درخت اس میں داخل ہوں گے اگر کہے بیچنے والا بِعْتُكَهَا وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا کہ میں نے اسے تم کو بیچا اور اس کا دروازہ جن چیزوں پر بند ہوتا ہے اسے بھی بیچا۔ یہ اصطلاح ہے مولانا، وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا کہنے کا مطلب اگر کسی زمین پہ باؤنڈری کر کے دروازے کو بند کر دیا جائے تو مجھے بتائیے باقی چیزیں اس میں محفوظ رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ کہا جس طرح دروازہ بند کرنے کے بعد کسی زمین پہ سارا سامان محفوظ رہے گا اسی طرح سے کیا ہوگا مولانا، اسی طرح سے اس بکری میں تمام کی تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں وَيَدْخُلُ لَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا، صحیح ہے، اور اسی طرح اس میں داخل ہوگا اگر بیچنے والا کہے کہ میں نے اس کو بیچا وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا اور جس پر اس کا دروازہ بند ہوا اسے بیچا۔ وَيَدْخُلُ فِي الدَّارِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ اور اگر کوئی گھر بیچے تو گھر میں اوپر کا طابق اور نیچے کا طابق دونوں داخل ہوتا ہے۔ آیا اگر کوئی آپ گھر خریدیں گے تو گھر اگر دو طابق ہے تو کیا مانا جائے گا مولانا؟ کیا آپ نے کیا خریدا ہے؟ دونوں خریدا ہے۔
इल्ला अन यस्तकिल बिस्सुकना आदतन, सिवाय इसके कि ऊपर वाला रहने के लिए हो, नीचे दुकानें हो, तब मौलाना नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? इल्ला अन यस्तकिल, सिवाय इसके कि मुस्तकिल हो। कौन सा मुस्तकिल हो? ऊपर वाला ताबिक किसके लिए? बिस्सुकना आदतन, रहने के लिए। जैसे कुछ होटल होते हैं, कुछ दुकानें होती हैं, कुछ घर होते हैं जिसके नीचे क्या होती हैं? दुकानें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो खरीदा तो दुकानें भी खरीद ली, नहीं, उनका अलग हिसाब किया जाएगा। वलौ बाआ नखलन मुअब्बरन, मुअब्बर से मुराद है मौलाना मुलक्कह, जब उसमें फल बैठ जाए। यानी फल बैठे, यानी जब उसका तलक़ी हो जाए। मिसाल के तौर पर कि अभी फूल आए हैं, ठीक है ना, और उसने बाग को बेच दिया, फसमरतु लिलबाइअ, तो फल किसके लिए है? बेचने वाले के लिए। क्योंकि जब ये फल टूट जाएंगे तब जाके वो खेत किसका होगा, वो जमीन किसकी होगी? खरीदने वाले की। वलौ लम युअब्बर, लेकिन अगर अभी फूल और फल नहीं बैठे मौलाना, है ना, और अगर उसने बाग बेचा तो फिर अब उसके बाद जो फल आएगा वो किसका होगा? लिल मुश्तरी, किसका होगा? खरीदने वाले का होगा। मैं कह रहा हूं आम का सीजन है, आम लग चुके हैं, अब मैं बाग बेच रहा हूं तो क्या बिकेगा मौलाना? आम भी बिक गया? कहा नहीं, आम बेचने वाले का रहेगा। लेकिन अगर अभी सिर्फ क्या है, आमादगी है या सिर्फ फूल आए हैं, उस सूरत में क्या होगा मौलाना? फल किसका हो जाएगा? खरीदने वाले का हो जाएगा। वला यदखुलुल हम्लु फिल इब्तिआई मिन गैर शर्तिन, वला यदखुलुल हम्लु, और जो बच्चा पेट में हो वो दाखिल नहीं होगा फिल इब्तिआई, बिक्री में। मिन गैर शर्त, बिना शर्त के। मसलन अगर कोई कह दे कि मेरी बकरी गाभिन है लेकिन अभी नहीं बेचूंगा, जब बच्चा दे देगी उसके बाद बेचूंगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैंने सौदा किया था इसका बच्चा भी मेरा है। इसीलिए उन्होंने कहा वला यदखुलुल हम्लु, यानी वो बच्चा जो पेट में है, ला यदखुलु फिल इब्तिआ, वो बिक्री में दाखिल नहीं होगा। फीमा ला युनक़लु वला, अरे मिन गैर शर्तिन, बिना शर्त के। फलौ इस्तस्ना नखलतान, हाँ मौलाना कोई बाग खरीदा, समझ लीजिए बात को, कोई बाग खरीदा और उस बाग में एक दो पेड़ अपने लिए मखसूस कर दिया कि इनको नहीं बेचना, उसी बाग में एक दो पेड़ अपने लिए मुअय्यन कर लिया कि इस बाग, इस पेड़ का आम हमारे घर वाले का है, ये नहीं बेच रहा हूं, बाकी पूरा बाग बेच रहा हूं। अब उस पेड़ तक जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? का रास्ते में वो इसी बाग से आएगा जाएगा, वो उसे मना नहीं करेगा क्योंकि उसका एक दरख्त वहां पर मौजूद है। फिर उस दरख्त का जितना साया है, एक पेड़ के पत्ते टहनियां जिस हद तक फैलती हैं, उसके नीचे की जमीन उसकी है। समझ आ गई बात? जितने एरिया में, सलाम अलैकुम, हेलो, उसमें है वो क्या हो जाएगा?
जो उस पेड़ का एरिया है वो पूरा पूरा पेड़ का एरिया किसका रहेगा? बेचने वाले का। उसका इख्तियार है, चाहे बैठे या जाए। हमें तो देखिए कि तो जितना एरिया उस पेड़ का है उस एरिया में वो बैठे लेटे जो चाहे करे, चूंकि वो जमीन किसकी रहेगी? पूरा बेच दिया उसने सिवाय एक दो पेड़ के। एक पेड़ छोड़ा आपने, कहा कि ये मेरा, ये नहीं बेच रहा हूं, ये अमरूद का है, ये चौसे का है, ये लंगड़े का है, ये दशहरी का है, ये मेरा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वहां वो जाएगा, लेटेगा, बैठेगा, जो करे वो उसकी जमीन है। इसीलिए का फलऊ इस्तस्ना नखलतान, अगर वो कोई एक पेड़ क्या कर दे? मुस्तस्ना कर दे। कान लहुल मदखलु इलैहा, तो उसके लिए वहां दाखिल होना क्या है? उसका हक है कि वहां पर वो दाखिल हो। कान लहुल मदखलु इलैहा यानी इला तिलका नखला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कान लहुल मदखलु इलैहा इला तिलका नखला, यानी नखला जो पीछे आया है ना, कान लहुल मदखल, तो उसके लिए इजाजत है दाखिल होने की। इलैहा इला नखला, जिस नखले को उसने मुस्तस्ना किया है। वल मखरज मिनहा, और वहां से निकलना। वमदा जराइदुहा फिल अर्द, और जितनी उसकी शाखें जमीन पर फैली हुई हैं। जराइद किसको कहेंगे मौलाना? हैं? जराइद किसे कहा जाएगा? यानी जितने में शाख जमीन पर उसकी फैली हुई है, उतना पूरा हिस्सा क्या होगा? उसका होगा, उसमें किसी और का दखल नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं बोला ना। अब इसके बाद इंशाअल्लाह अल-फ़स्ल सामिन फी तस्लीम, जिसे इंशाअल्लाह हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, कितना बचता है ये किताब, कितनी बचती है? पीछे से रिवाइज करते रहिए, ताकि ये खत्म करने के बाद इसके बाद कौन सी किताब आती है? इजारा। इजारा जानते हैं किसको कहते हैं? किराया वगैरह के काम आएंगे, देखते हैं इंशाअल्लाह। वरना रिवीजन भी साथ साथ शुरू कर देंगे, ताकि पीछे से क्या हो जाए, एक तरीके से रिवाइज हो जाए। वाज़ेह है मौलाना मोहम्मद अली हुसैन साहब? जी बात से इंशाअल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।